नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे हैं। विदेश नीति की इस सीरीज में आपका दोबारा से स्वागत है। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है तालिबान के 6 महीने कंप्लीट होना और भारत के रिश्ते तालिबान से। सो वेलकम फ्रेंड्स बैक टू द विदेश नीति सीरीज। द टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे इज द completion of 6 months of rule by Taliban and India's relationship with Taliban, which is there. Friends, Taliban basically came to power way back again in 2021, and it acquired power on 15th of August 2021, and on 15th of February 2022 Taliban completed 6 months in office. So the objective here is to understand that how the Taliban today, which has completed 6 months in office, is different from the Taliban earlier. Our objective is also to understand that what difference exists in Taliban today vis-a-vis the Taliban that we had earlier. दोस्तों, पिछले साल 15 अगस्त 2021 को तालिबान जो है अफ़गानिस्तान में एक तरीके से दोबारा उसने अपना रूल शुरुआत करा और 15 फरवरी 2022 को तालिबान के 6 महीने ख़त्म होते हैं रूल के। पिछले 6 महीने से तालिबान अफ़गानिस्तान में एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट रूलर बन के वहाँ पर बैठा है एज अ ग्रुप। इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले 6 महीने ये तालिबान के कैसे रहे, उसने कूटनीति के नाम पर क्या तकनीकें अपनाई और तालिबान आज की डेट में करना क्या चाह रहा है, भारत उससे कैसे इंगेज कर रहा है, भारत के क्या मसले हैं, हम वो जानने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, वन थिंग इज़ इम्पोर्टेंट दैट when Taliban came to power last year, the world was very much prepared. This situation last year was not what it was earlier in 96, because in 96 when Taliban came to power for the first time, which normally is called the Taliban 1.0, at that time nobody in the world knew Taliban. Nobody knew what Taliban is, nobody knew who Talibanis are, nobody knew from where do they came, and people in the world also never knew that why was Pakistan so supportive of them. That's the reason why that if you look at the Taliban 1.0, the one very important thing we observe in Taliban 1.0 is that there was a lot of confusion in the world about who these people are and what their foreign policy and what their domestic policy is going to be like. Let's not also forget one thing that the Taliban 1.0, which came to power in 96 and remained in power till 2001, was also an inexperienced Taliban. It was an inexperienced group because these people, the Talibs, who were basically the core of Taliban, were merely students who were studying. They were studying in different madrasas in Pakistan. And these people at that time acquired power with the assistance of Pakistan, with the assistance of the ISI of Pakistan, their intelligence agency. But it is very important to remember one thing, that these people at that time during the Taliban 1.0 were very inexperienced people. They never knew anything about governance. They had never studied governance. They were never taught on how to rule a country. They were taught on jihad. They were taught on how to fight a adversary. So these people at that time when they came, they were chaotic in the way they managed the things. They were perceived ruthless also because of the way they acted on the ground. They had imposed serious restrictions on the rights of women and children, which was looked down upon the country as such, and the international community never supported them. And considering the fact that majority of the people in the world never knew that who these people are, from where they came and why they came, the Taliban 1.0 witnessed a lot of challenges. दोस्तों, जब हम तालिबान की बात करते हैं तो हमने ये बोला कि पिछले साल 15 अगस्त को तालिबान दोबारा पावर में आई, तो यानी कि इससे एक बार पहले भी तालिबान पावर में आई, और जब वो एक बार पहले आई वो था 1996 से 2001 का पीरियड। ये जो समय था दोस्तों 1996 से 2001 का, उस समय जो तालिबान 1.0 बोला जाता है,
एक चीज़ हमें याद रखनी है कि दोस्तों जब ये तालिबान 1.0 आया था तो उस समय कहीं ना कहीं पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन सा था। लोगों को दूसरे देशों में ये चीज़ नहीं समझ आ रही थी कि भाई ये तालिबान है कौन, ये कहाँ से आए, क्यों आए। और सबसे बड़ा मसला जो था दोस्तों वो ये भी था कि एक तरीके से कहीं ना कहीं ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही थी कि भाई ये जो तालिबान वाले हैं इन्होंने एक तरीके से पूरे देश पे कब्जा कैसे कर लिया। ये बात सब लोग जानते थे कि कहीं ना कहीं तालिबान को पाकिस्तान का सपोर्ट है। इसलिए सपोर्ट था क्योंकि तालिबान के जो लोग थे, जो तालिब कहते हैं जिनको हम, वो तालिब एक तरीके से मदरसों में पढ़ते हुए बच्चे थे। और ये मदरसों में पढ़ते हुए जो बच्चे थे कहीं ना कहीं दोस्तों ये सारे पाकिस्तान के ही मदरसों में पढ़ रहे थे। और क्योंकि ये पाकिस्तान के मदरसों में पढ़ रहे थे तो उस समय उन्हीं मदरसों के सपोर्ट से जो पाकिस्तान की खुफिया संस्था आईएसआई है उसने मदद करके तालिबान को 1996 में इकट्ठा करके मुल्ला उमर के लीडरशिप में इनको अफगानिस्तान का कब्जा करवाया। अब सबसे बड़ी समस्या ये थी दोस्तों कि जब तालिबान 1.0 आया, यानी कि जब ये तालिबान 1996 में पाकिस्तान की खुफिया संस्था आईएसआई की मदद से आया, उस समय इन लोगों को एक तरीके से राजनीति करने का कोई तजुर्बा नहीं था, देश चलाने का कोई तजुर्बा नहीं था। ये लोग ट्रेन किए गए थे केवल जिहाद की एक्टिविटी में। और क्योंकि इन लोगों का मेन ट्रेनिंग जिहाद था, क्योंकि इन लोगों का मेन ट्रेनिंग हमेशा से ये था कि आपको सोवियत यूनियन से लड़ना है। खैर जब तक ये 96 में आए तब तक सोवियत यूनियन उनके लिए बचा ही नहीं था, क्योंकि सोवियत यूनियन 1988 में 1988 में एक तरीके से छोड़ के चला गया था। तो उस समय जब ये लोग 1996 में आए दोस्तों, तो उस समय तालिबान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि कैसे वो देश को चलाएंगे। अब क्योंकि उनको कोई तजुर्बा नहीं था तो उस तजुर्बे की कमी से उनका व्यवहार भी कुछ वैसा ही रहा। आते सार उन्होंने बच्चों पे और औरतों पे काफ़ी जुल्म किए, जिसकी वजह से पूरे विश्व के देशों ने उनको बहुत क्रिटिसाइज भी किया। देखिए दोस्तों कि हमें एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि जब तालिबान सबसे पहले आया था और 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान में रहा था, उस समय क्योंकि वो लोग कभी तैयार थे ही नहीं देश चलाने के लिए, तो उनका व्यवहार पूरा विश्व समझ नहीं पाया। और इसी कारण से अगर हम देखें तो उस समय सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट और एक तरीके से पाकिस्तान को छोड़ के कूटनीतिक लेवल पर किसी देश ने भी उनको रिकग्निशन नहीं दिया था, क्योंकि लोग नहीं जानते थे कि वो कौन है, क्या है। इस कारण से ये हुआ कि कहीं ना कहीं तालिबान अपने पहले टेन्योर में, जो हम तालिबान 1.0 जिसको कहते हैं 1996 से 2001 का जो पीरियड है, उस समय में कहीं ना कहीं तालिबान दोस्तों कामयाब नहीं रह पाया। ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी। लेकिन कहीं ना कहीं अब हमें दूसरी चीज़ भी समझनी है कि अब स्थिति अलग है। उस समय लोग तालिबान को नहीं जानते थे, अब लोग तालिबान को जानते हैं। क्योंकि 2001 में जब अमेरिका ने एक तरीके से अफ़गानिस्तान पर आक्रमण किया, अफ़गानिस्तान से आकर उन्होंने अलकायदा और तालिबान को हटाया, तो उस समय कहीं ना कहीं ये जो तालिबान वाले थे, क्योंकि इनको पाकिस्तान की खुफिया संस्था आईएसआई ने हमेशा से सपोर्ट किया था, ये लोग पाकिस्तान वापस चले गए। और जब ये लोग पाकिस्तान वापस चले गए तो पाकिस्तान में उस समय इन लोगों की मदद पाकिस्तान ने करी। अमेरिका के लिए उसका सबसे बड़ा वैरी अलकायदा बन चुका था, और उस वैरी को टैकल करने के लिए उसने ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म की स्थापना की थी 2001 में। और ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म के नाम पर अमेरिका जो है अलकायदा को तोड़ रहा था। लेकिन ये मत भूलिएगा दोस्तों कि जब अमेरिका अलकायदा को तोड़ रहा था तो उसी समय पाकिस्तान जो है तालिबान को जोड़ रहा था और उसका एक इमेज मेक ओवर कर रहा था, उसको एक नई आइडेंटिटी दे रहा था, उसको सिखा रहा था कि देखिए आपको अफगानिस्तान में कंट्रोल एक दिन लेना ही है। उसको ये बता रहा था कि जिस दिन आप कंट्रोल लेंगे आपको किस तरीके का रवैया और व्यवहार करना है। लेकिन उस समय अफगानिस्तान में दिक्कत ये हो रही थी दोस्तों कि जब अमेरिका ने 2001 में अफगानिस्तान पर आक्रमण किया, उस आक्रमण के बाद अमेरिका ने वहाँ पर एक तरीके से डेमोक्रेसी की स्थापना करी अफगानिस्तान में।
तो एक जगह पर अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी की स्थापना हुई और हमीद कारजाई, अशरफ गनी जैसे दो राष्ट्रपति वहाँ पर उसके इतिहास में आए। लेकिन उसी समय जब अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी थी, हमीद कारजाई, अशरफ गनी जैसे राष्ट्रपति थे, ये तालिबान वाले सारे लोग 2001 से पाकिस्तान की सीमा के अंदर रह रहे थे, पाकिस्तान की टेरिटरी में रह रहे थे, और पाकिस्तान इनकी इमेज मेक ओवर में लगा हुआ था, इमेज मेक ओवर में डटा हुआ था, इनको एक नई आइडेंटिटी दे रहा था। और जैसे जैसे ये नई आइडेंटिटी देता गया, अमेरिका उस समय अलकायदा को तोड़ता गया, और 2011 तक जब अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को इवेंचुअली मारा, और जब 2011 में एक तरीके से अलकायदा का ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, अलकायदा के खिलाफ ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, तो उस समय पाकिस्तान ने सबके सामने ये बात पेश करी, और अफगानिस्तान में ये एक नया थॉट रखा कि तालिबान जो है एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है, और तालिबान को बोला गया कि अब आप जो है अफगानिस्तान का एक फ्यूचर रोल हासिल करेंगे। लेकिन अमेरिका ने बोला कि अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी है और तालिबान अगर आएगा तो उसको डेमोक्रेसी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो तालिबान ने उस चीज़ का ओपोजिशन किया। वहीं पर अमेरिका के ऊपर एक दबाव पड़ रहा था उनके घर में वापस अमेरिका में ही, कि हमारे एक तरीके से सैनिक अफगानिस्तान में 10,000 मील दूर जाके क्यों लड़ रहे हैं। तो अमेरिकाओं के जो जितने राष्ट्रपति थे, चाहे वो बराक ओबामा हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, इन सब के ऊपर बहुत दबाव था उनकी डोमेस्टिक पॉपुलेशन का कि आप हमारे सैनिकों को वापस बुलाइए। तो तालिबान ने वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनाई, और उन्होंने कहा कि ठीक है, आज नहीं तो कल जब अमेरिका जाएगा तो ये डेमोक्रेसी नहीं बचेगी, और जिस दिन डेमोक्रेसी नहीं बचेगी तो हम वापस आ। सो फ्रेंड्स, वन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, Taliban 1.0 was there in power from 96 to 2001. In 2001, the 9/11 attacks happened. The World Trade Centers were attacked. When the World Trade Centers were attacked, the Americans retaliated to the 9/11 by launching the Global War on Terrorism. The Global War on Terrorism was launched with the US invasion of Afghanistan in 2001. So when the Americans invaded Afghanistan in 2001, what happened at that time? At that time, one thing became very clear, that in 2001, when the Americans invaded Afghanistan, at that time, the US launched a massive operation against Taliban and Al-Qaeda. The Talibanis immediately shifted back to Pakistan because they were created by the ISI. The main enemy of America was Al-Qaeda, so America started a war on Al-Qaeda, which was under the umbrella called the Global War on Terrorism. This war on terrorism, which tackled Al-Qaeda, lasted almost for a decade. It lasted from 2001 to 2011. But as America removed the Taliban from power in Afghanistan, they brought about democracy in Afghanistan. And from 2003 onwards, we had democratically elected presidents in Afghanistan. We initially had Hamid Karzai, and who was there for 2 terms, and after that we had Ashraf Ghani, who again became the president. So while at one place in Afghanistan the Americans installed what we call democracy, the Americans continuously also at the same time parallelly fought the Al-Qaeda under the Global War on Terrorism. So while the Americans were fighting the Global War on Terror, while they were having and nurturing a democratic setup in Afghanistan, at that time what also happened is that in Afghanistan, the democratic government was functioning properly, but the Talibanis were in Pakistan. They were nurtured by the Pakistanis. And in 2011, when US killed Osama bin Laden in Pakistan in Abbottabad, after that the Al-Qaeda got fragmented and broken down. When Al-Qaeda got broken down, an important thing that happened subsequently was that now Taliban was presented as an alternative to Afghanistan. But Taliban refused to accept the democracy. Meanwhile, there were pressures on the US presidents to pull back the troops, and Barack Obama witnessed that pressure. Donald Trump witnessed that pressure. So in that pressure, the Americans were compelled to bring back their troops. So the Talibanis were very patient for that matter.
They said, fine, America will go back one day, and when the Americans go back, we will occupy Afghanistan. That is what precisely happened in 2021. That Americans went back, and then it paved way for Taliban to go back to Afghanistan. दोस्तों, जब से तालिबान आया लास्ट ईयर से, भारत ने हमेशा से उससे ऐतिहासिक तरीके से एंगेजमेंट पहले भी रखा था, तो ये एंगेजमेंट जारी रहा. हम लोगों ने एक लिमिटेड डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट डॉक्ट्राइन बनाया अफगानिस्तान को लेके, जिसमें हमने 50,000 कोविड के इंजेक्शन उनको दी. हमने गेहूं कूटनीति करी, जिसके ऊपर हम लोग वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी. हमने एक ऐसी पॉलिसी रखी कि तालिबान से बातचीत करते करते दूसरे देशों से भी जो अफगानिस्तान में इंटरेस्टेड हैं, जिसमें मध्य एशिया के देश हो, ईरान हो, इन सारे देशों से हम एंगेज करते रहे. हमारे खुद के सिक्योरिटी कंसर्न भी हैं. हमारा सबसे बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न ये है कि तालिबान, हमें ये पता है कि वो पाकिस्तान की कठपुतली नहीं है, लेकिन हमारा जो कंसर्न ये है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान तालिबान पे दबाव डाल के उसको ये ना बोले कि जो पाकिस्तान में उन्होंने आतंकवादी संगठन बना रखे हैं, उन संगठनों को वो अफगानिस्तान में रखे, और उनको अफगानिस्तान में रख के अफगानिस्तान में कहीं ना कहीं उनको बढ़ावा दी, जिससे कि वो भारत पर और अटैक कर पाए. हमने ये बात तालिबान को कई बार बोली है, और तालिबान ने हमारे को ये बात कई बार अपनी तरफ से अश्योरेंस दिया है, आश्वासन दिया है उन्होंने कि भारत को डरने की ज़रूरत नहीं है. और उन्होंने ये बात बोली है कि हम कोई पाकिस्तान के कठपुतली नहीं है कि पाकिस्तान हमें बताएगा क्या करना है. हमारा अपना एक इंडिपेंडेंट दिमाग है, और हम अपने आप इस चीज़ को डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है. और उन्होंने ये बात का आश्वासन हमें दिया है कि अफगानिस्तान की मिट्टी के ऊपर पाकिस्तान की कोई आतंकवादी संगठन कभी भी आकर भारत के ऊपर आक्रमण करने की तैयारी नहीं करेगा. तो आज की डेट में दोस्तों, अगर हम देखें तो भारत एक बहुत अच्छे तरीके से तालिबान से एंगेज कर रहा है. लिमिटेड एंगेजमेंट है. हम लोगों ने अभी तक उनको कूटनीतिक लेवल पर एक रिकग्निशन नहीं दिया है. और सबसे सरप्राइजिंग बात है कि तालिबान का जो 1.0 था, उसमें जैसा मैंने आपको बताया कि सऊदी अरेबिया, यूएई और पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक रिकग्निशन दिया था, इस बार पाकिस्तान ने भी अभी तक डिप्लोमेटिक रिकग्निशन नहीं दिया है. तो कहीं ना कहीं एक चीज़ तय है कि आने वाले समय में तालिबान जब तक अपना एक राजनीतिक मॉडल प्रेजेंट नहीं करेगा देश के सामने, पूरे विश्व के सामने, तब तक डिप्लोमेटिक रिकग्निशन नहीं मिलेगा. बट डिप्लोमेटिक रिकग्निशन ना भी मिलने के कारण ये मतलब नहीं है कि भारत जैसे देश को पाकिस्तान के कारण या किसी और फैक्टर के कारण तालिबान से एंगेज नहीं करना चाहिए. हम तालिबान से चर्चा कर रहे हैं, हमारी कूटनीति चल रही है, हमने गेहूं दिया, कोविड के टीके दिए, हमारे सुरक्षा को लेके कंसर्न है जो हमने उनको पॉइंट आउट करे, और आज की डेट में रीजन के कई देशों के साथ हम एंगेज कर रहे हैं. तो आगे भी ये स्थिति चलती रही. Despite the fact that Taliban is there now again since last year, India has adopted a limited diplomacy engagement doctrine, under which we have continued to engage with Taliban. We have given them 50,000 COVID injections. We have provided them with wheat, and on wheat diplomacy I had a separate video also. Today we are engaging with the different regional players like the Central Asians. We are engaging with the Iranians. We are engaging with any country which has importance in Afghanistan for their stability and future. We have communicated our security concerns to Afghanistan, and we have communicated our security concerns to Taliban. We have told them one thing, that we would not want the Afghan soil to be used by any Pakistani terrorist group like Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed, etc. for any anti-India activities. And Taliban has given us assurance that the soil of Afghanistan will not be used for any anti-India activities. But India till today has not given diplomatic recognition to Taliban. We are waiting for them to present their governance model on which they are working today. And in the near future, if Taliban is able to establish their governance model, which they are trying to do, there could be a probability that India might diplomatically also start engaging with them. But till that time, that doesn't mean that in the absence of a diplomatic, in the absence of a model of governance, that we do not engage with them. So we are still engaging with them. Our engagement is on a humanitarian ground. The Talibanis are using a humanitarian diplomacy push. We are working with them, and hopefully in the future
द रिलेशनशिप विल एनलार्ज फर्दर। तो दोस्तों, आने वाली स्थिति में, समय में, तालिबान का जो ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी चल रहा है, उसके बेसिस पे अगर वो अपना एक राजनीतिक मॉडल तैयार कर लेते हैं तो भारत और दूसरे देश उनको कूटनीतिक लेवल पर एक रिकग्निशन दे पाएंगे। So I hope that this small video helped you to get a clarity about how the 6 months have evolved and what the future is. तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये छोटे से वीडियो में आपको एक चीज़ समझ आ गई होगी कि पिछले 6 महीने कैसे रहे और भारत की आगे की कूटनीति तालिबान के साथ कैसी होगी। धन्यवाद।